हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर नर्सिंग बॉय एंड हियर योर बॉय आर्यन शर्मा। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं पीआर यादव के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन पहले ही वीडियो बना दी गई है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो इसके बाद वो जाके देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं 101 से क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर आई स्टार्टेड दिस वीडियो, इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, 101 क्वेश्चन है हमारा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेबल थ्रू इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट मम्स के लिए हम इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। मीजल्स को कर सकते हैं डिप्थीरिया को कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा को नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। ईच ईयर न्यू इन्फ्लुएंजा एंटीजन आर इमर्ज, सो ईच ईयर अपडेट वैक्सीन आर डेवलप्ड टू काउंटरैक्ट न्यू स्ट्रेन्स ऑफ द डिजीज। दैट इज वाई इन्फ्लुएंजा कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन बिकॉज ऑफ न्यू स्ट्रेन डेवलप्ड ईच ईयर। हर ईयर के साथ साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद इन्फ्लुएंजा का जो स्ट्रेन है वो डेवलप होता रहता है, चेंज होता रहता है, जस्ट लाइक आर कोरोना वायरस। दैट्स वाई द प्रिवेंटेबल इम्यूनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द इन्फ्लुएंजा डिजीज। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज एन इंट्रानेजल स्प्रे और एज अ नोज ड्रॉप कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। सो कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं हम इंट्रानेजल स्प्रे के थ्रू और नोज ड्रॉप के थ्रू, वो होती है हमारी इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 103। ड्यूरिंग अ वैक्सीनेशन ड्राइव एट वेल बेबी क्लिनिक अ नर्स ऑब्जर्व दैट अ रिसेंटली हायर्ड नर्स इज नॉट wearing gloves. The nurse should advise the newly hired nurse to speak with nurse manager regarding techniques, continue with the immunization since gloves are not needed, put on gloves because standard precautions are required, evaluate the child appearance to determine whether gloves are needed. So these types of questions we use are some skills that we easily get the answer. Okay, so इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पर थोड़ी सी अपना सेंस लगाओगे, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, you easily get the right answer. Okay, so the answer is option C. Next question is 104. That is, after receiving immunization for a diphtheria, tetanus and pertussis, a child develops swelling, tenderness at the injection site, low grade fever and malaise. The pediatric nurse informed the child parents that they should delay future immunization until the child seen by allergist. The reaction is severe enough that they should bring the child to an emergency department. This is an appropriate reaction attempt to do nothing. This is a mild reaction and teaches how to manage it. So the answer is D, because we know when we give immunization of diphtheria, tetanus and pertussis, child के अंदर swelling, tenderness और low grade fever आ सकता है। Okay, so this was a mild reaction and इसमें हम टीच करेंगे कि हमें इसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। And the explanation is reaction like pain, swelling, tenderness at the site and fever, irritability and malaise are a minor and settle on their own with home management. Okay, so next question was, a 6-month-old child received DPT immunization at a well baby clinic. The mother returns home and calls the clinic to report that the infant has developed swelling and redness at the site of injection. The nurse tells the mother to apply a warm pack to the injection site, bring infant back to the clinic, apply ice pack to the injection site, and monitor the infant for fever. So the answer is option C, apply ice pack to the injection site. Okay, अब हम next question पे आते हैं हमारे 106. Neonates born to a woman infected with hepatitis B should undergo which treatment? Hepatitis B vaccine at birth and first month, hepatitis B immunoglobulin at birth, no hepatitis vaccine, hepatitis B immunoglobulin within 48 hours of birth and hepatitis B vaccine at first month. The last option, hepatitis B immunoglobulin with 12 hours of birth and hepatitis B vaccine at birth 1 month and 6 months. So the answer is option D. The simultaneous administration of HBIG, hepatitis B immunoglobulin and hepatitis B vaccine is more effective after exposure to HBs antiglobulin blood. ठीक है, antigen blood. Hepatitis B immunoglobulin should be given as soon as possible and within 24 hours if possible. Hepatitis B vaccine first dose should be given at birth or within 7 days, second at 1 month and third at 6 months. Okay, so आई नो कि आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, और अगर आपको इसमें अभी भी थोड़ा डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में और ज़्यादा स्टडीज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 107. द क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इज बॉर्न टू अ वुमन हु हैज़ टेस्टेड HBs AG पॉजिटिव, शुड दिस इन्फेंट रिसीव द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? तो अभी हमने पढ़ा उसमें फर्स्ट डोज हमें कैसे लेना पड़ता है, विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ। फर्स्ट डोज हमें कब लेना है, 12 आवर ऑफ बर्थ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी वुड बी राइट। हमें हेपेटाइटिस बी का रूट कैसे देना है, इंट्रामस्कुलर ही देना है। ओके, मस्कुलर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैक्सीन फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट लास्ट फॉर अबाउट 3 years. सो द आंसर इज 3 years. जो वैक्सीन है हमारी दैट इज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कब तक, 3 years के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वैक्सीन फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस इम्यूनिटी विद इन 10 to 14 days ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिमेन्स लास्ट अप टू 3 years. सो इट रिक्वायर बूस्टर एट एवरी 3 years. तो ये लास्ट 3 year तक रहती है, उसके बाद इसको बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है एट लास्ट ऑफ 3 years. Now we move on next question, and this was related to the level of prevention. If you doesn't know the level of prevention, that I should recommend you first of all open your community health nursing book and studies about level of prevention. And if you don't know, it's okay, आप उसे बाद में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी उसके बारे में पता है या you have some knowledge about level of prevention, you easily crack these questions. So without wasting time, इसको start करते हैं। Question is 110. The population targeted by indicated preventive intervention is
इंडिकेटेड प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस, ये कौन सी पॉपुलेशन होती है? हाई रिस्क इंडिविजुअल वाली होती है। ऑप्शन वॉज हाई रिस्क इंडिविजुअल, जनरल पॉपुलेशन, ग्रीविंग फैमिलीज, एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन। देखो जनरल पॉपुलेशन नहीं होगा, ग्रीविंग फैमिलीज हमें नहीं पता है, एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी नहीं होता है, सो द आंसर वुड बी ए। ओके, हाई रिस्क इंडिविजुअल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सा एग्जांपल है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज द फर्स्ट प्रिवेंशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा प्राइमोडियल, देन आता है प्राइमरी, देन आता है सेकेंडरी एंड देन आता है टर्शियरी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन पुट्स एफर्ट्स टू डिस्करेजिंग इंडिविजुअल टू अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल टू मिनिमाइज हेल्थ हजार्ड्स इन ईयर्स फ्यूचर्स, सो इट इज एन अटेम्प्ट फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, provide education to the school, college and street children or prevention of drugs addiction is an example of primordial prevention. Okay, next question 113, hindrance on reducing the occurrence of disease is referred to as, देखो समझने की कोशिश करना, वैसे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमोडियल इन्फेक्शन एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक एग्जांपल के तौर पर समझो, देखो प्राइमोडियल में हम डिजीज़ के होने के रिस्क को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डिजीज़ नहीं हुई है बट देयर वॉज सम चांसेस कि रिस्क जिससे वो डिजीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हैंड वॉशिंग करना है तो हैंड वॉशिंग आता है हमारा प्राइमोडियल में। क्यों? क्योंकि उसमें हमें डिजीज़ हुई नहीं है, वी नॉट गेट कंटेमिनेटेड और गेट सफ़र विद दैट पर्टिकुलर डिजीज़ और एनी टाइप्स ऑफ डिजीज़, बट इट हैज़ सम चांसेस कि वो डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ अगर हम अपनी हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो डिजीज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में हम अगर डिजीज़ होने वाली है या हो रही है तो उसके अकरेंस को कम करते हैं। ठीक है, अकरेंस, रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ ना हो उसको हम कम करते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल आइसोलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, बाय, इसका मैं इसके आगे बताऊंगा बट आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन और प्रीमोडियल प्रिवेंशन में क्या। प्रीमोडियल देखो हमारा फर्स्ट वाला होता है डिजीज़ से पहले, डिजीज़ हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन हम उसके कांटेक्ट में भी नहीं आए, हमें उसके रिस्क फैक्टर में भी नहीं आए, समझ रहे हो? रिस्क फैक्टर भी नहीं आने चाहिए उसमें, और उसके बाद हम उसके प्राइमरी में क्या होगा, उसके रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, अब हम वो रिस्क फैक्टर को कम करेंगे। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट में आपको दोनों के एक्सप्लेनेशन दिए हैं, यू विल टेक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बारे में पढ़िए अगर आपको नहीं आया। वैसे मैंने ट्राई किया कि आपको आ जाए। अब हम करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लाइक there was a hindrance or reducing the occurrence of disease and prolonging the life is referred as primary prevention. Primary prevention include the concept of positive health. Primary prevention किस concept में करता है? Positive health. Okay, now we move on our next question, that is 114. Measures taken to prevent occurrence of disease. Occurrence of disease मतलब risk factor को कम कर रहे हैं। अगर हम prevent कर रहे हैं occurrence को, means risk factor को, तो वो किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में। और प्राइमोडियल में, ध्यान सुनना मेरी बात, प्राइमोडियल में हम रिस्क को ही होने नहीं दे रहे हैं, रिस्क फैक्टर को ही होने नहीं दे रहे हैं, रिस्क फैक्टर से ही बच जा रहे हैं। और इसमें हम क्या करें, रिस्क फैक्टर तो है, अब हम उस रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। द आंसर इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर और प्रिवेंशन ऑफ। देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्राइमोडियल में हम किसी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम हाइजीन अगर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो उसमें हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वी मेंटेन बिकॉज टू प्रिवेंट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर से बचने के। रिस्क फैक्टर आए नहीं है, प्राइमरी में क्या हो रहा है, रिस्क फैक्टर आ चुके हैं, नाउ वी हैव टू, नाउ व्हाट पर्पस इज टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर। Without risk factor is primordial, with risk factor and our duty is to reduce that particular risk factor is the primary level of prevention. Okay, तो क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन चाहिए। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन भी कर रहे हैं। मेजर्स किस में करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन आर हेल्थ प्रमोशन by health education, environmental modification, nutritional intervention and lifestyle and behavior changes. Specific protection by immunization, use of specific nutrients, chemoprophylaxis, protection against occupational hazards and carcinogens, avoidance of allergens and protection from environmental hazards and accidents. Okay, wearing seat belts, safety helmets and other safety equipments are an example of primary health promotion behavior. Okay, so इसमें हमारा रिस्क फैक्टर है, क्या है रिस्क फैक्टर? हमारा एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, सो रिस्क फैक्टर से बचने के लिए, ओके, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं। प्राइमोडियल में अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हम जाएंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल आप घर से निकल नहीं रहे हो तो रिस्क फैक्टर ही नहीं आया, आप घर से निकल नहीं रहे हो तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। इन केस इन एन इमरजेंसी इफ यू गो आउट फ्रॉम योर होम इन एन हाईवे देन देयर वाज एन रिस्क फैक्टर कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। समझने की कोशिश करो, रिस्क फैक्टर और विदाउट रिस्क फैक्टर। इफ यू हैव एन रिस्क फैक्टर इट विल गोज ऑन द प्राइमरी प्रिवेंशन, विदाउट रिस्क फैक्टर प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो रिस्क फैक्टर है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। देखो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसमें क्या आ गई, आपकी बॉडी, आप एक्सीडेंट के लिए तो प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, और किसी डिजीज़ के लिए तो प्रिवेंट नहीं कर रहे हो हेलमेट लगाने की वजह से। हेलमेट लगा के आप सिर्फ एक्सीडेंट से अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो ना, तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई। सो दैट ऑल्सो इंक्लूडिंग प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 106, वियरिंग सीट बेल्ट। ओके, 106 हमने कर लिया है, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर में इसका आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव मूव ऑन आवर 17th क्वेश्चन। ओके,
wait a minute. Okay, so our 117 question is specific protection of disease activities include all of these: use of specific immunization, no; मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, ये हमारा आ जाएगा प्राइमोडियल में, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और सेलेक्टिव प्लेसमेंट। सो द आंसर इज सेलेक्टिव प्लेसमेंट। क्वेश्चन पढ़ो, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल, हर चीज़ आती है इसमें। एक क्या आता है, सेलेक्टिव प्लेसमेंट नहीं आता। सेलेक्टिव प्लेसमेंट का मीन्स क्या हो गया हमारा कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको कर रहे हैं, दैट वाज नॉट इंक्लूडिंग। यूज ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन वो हमारे प्राइमरी में आता है। मेंटेनिंग न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन प्राइमरी में इंक्लूड होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, हमारा प्राइमरी में आता है। लेकिन सेलेक्टिव प्लेसमेंट हमारा प्राइमरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन फोकसेस ऑन गिवन कीमो prophylaxis for cholera? So the answer is specific protection. देखो कीमो prophylaxis for cholera for a particular disease, तो इसमें क्या एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 119, प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन अ चाइल्ड इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए कर रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ये भी किसमें आ गया, हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आ गया। ओके, मतलब ये आ गया हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। An outpatient department nurse is providing health education to a 40-year-old person regarding the lifestyle modification to prevent hypertension. What level of prevention is the nurse providing? अब इसका जवाब आप दो। फिर से पढ़ता हूँ, एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, किसको दे रही है, एक पेशेंट को दे रही है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से है, 40 ईयर्स का है, किसके रिगार्डिंग दे रही है, हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग दे रही है। व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन द नर्स प्रोवाइडिंग, ये कौन सी चीज़ के लिए बता रही है, किसके लिए बता रही है, हाइपरटेंशन के लिए बता रही है। ओके, सो ये क्या है हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मीन्स रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो चुके हैं। हेल्थ एजुकेशन, why the nurse should give health education to a patient to reduce those risk factor in which the hypertension of a person get reduced. Are you understand what I'm saying? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और प्रीमोडियल में दो चीज़ का फर्क है, दैट वाज द रिस्क फैक्टर। बार बार बता रहा हूँ बिकॉज दिस वाज सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी प्रिवेंशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, आइसोनाइज्ड टू अ बेबी ब्रेस्ट फेड बाय स्प्यूटम पॉजिटिव ट्यूबिकुलर मदर। सो ब्रेस्ट फेड सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, तो ये डायग्नोस में आ गया, और डायग्नोस में हमारा कौन सा आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। सो दिस वाज द सी इज द राइट ऑप्शन। प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये थर्ड होता है हमारा। स्क्रीनिंग टेक्निक, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज, सेकंड होता है हमारा। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन एंड फिजिकल न्यूट्रिएंट फिटनेस एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इनटू द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड दी केयर ऑफ डायबिटिक क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो ऑप्शन ए, डी आर टर्शरी प्रिवेंशन एंड बी आर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आंसर प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या हो जाएगा, सी। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा 123, इन द प्रिवेंशन ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। द लेवल ऑफ केयर विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिजीज एंड मॉनिटरिंग स्टेबल ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस। सो सेकेंडरी केयर लेवल, टर्शरी केयर लेवल, एडवांस केयर लेवल एंड प्राइमरी केयर लेवल। सो द आंसर वुड बी प्राइमरी केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडक्टिंग पैप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर। डिटेक्ट, डायग्नोस वाला देखो फिर से पॉइंट आ गया। सर्विक्स इज अ प्रिवेंशन ऑफ, देखो जो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है ना 4, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड जस्टिफाई कर लो। जैसे रिस्क फैक्टर के लिए हमने दो चीज़ पढ़ी है, प्रीमोडियल और प्राइमरी। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और किसी टेस्ट के पर्टिकुलरली हमने क्या किया है, सेकेंडरी को किया है। और थर्ड जो टर्शरी वाला है उसके लिए यूज़ किया है मैंने रिहेबिलिटेशन। तो ये सब चीज़ें क्या होगी ना, जैसे आपके दिमाग में इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एकदम से वो टक करेगा कि किस में रिस्क फैक्टर चीज़ें आ रही हैं, किस में डायग्नोस्टिक चीज़ें आ रही हैं, किस में इम्यूनाइजेशन आ रहा है हमारा। ओके, प्राइमरी वाले के लिए इम्यूनाइजेशन भी आप कर सकते हो, सेकेंडरी वाले के लिए आप डायग्नोस कर सकते हो, टर्शरी वाले के लिए आप रिहेबिलिटेशन वाला पॉइंट याद रख सकते हो, जिससे आपको ईजिली याद आ जाएगा कि ये कौन से उसमें आ रहा है। ओके, 125 क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई होप द स्क्रीन शुड बी क्लियर। स्क्रीनिंग एक्टिविटीज लाइक पैप स्मेयर, BSc and TSC are activities of secondary prevention because it recognizes the already started process of pathogenesis. Although health teaching regarding screening activities are part of primary prevention. Psychiatric department in your hospital is conducting a screening program in primary schools to identify children with attention defect hyperactivity disorder. What level of prevention measures are that are secondary? क्यों, देखो स्क्रीनिंग आ गया ना वर्ड। स्क्रीनिंग मीन्स डायग्नोस से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड, तो इसका लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या आ जाएगा, विदाउट एनी डाउट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ये हमारा आ जाएगा हमारा रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है। स्क्रीनिंग इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। अर्ली डिटेक्शन में कैसे डिटेक्ट करेंगे, टेस्टिंग के थ्रू करेंगे और डायग्नोस के थ्रू करेंगे। क्राइसिस स्टेबलाइजेशन वी ऑल डजंट नो, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो रिहेबिलिटेशन वी नो कि टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नाउ we move on our 130 question and that was 130 क्वेश्चन है हमारा। मेजर टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा मेजर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस करते हैं टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, वो आता है हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। ओके, अब आता है हमारा 131 क्वेश्चन दैट वाज secondary level of prevention of disease include rehabilitation, no it is example of tertiary level of specific protection, it is an example of primary। early diagnosis, देखो diagnostic and treatment आ गया, this was the right answer, option C। the following health are related activity
is secondary prevention, giving medication to a patient in the ward, advice on safe sex practice to the adolescents, immunization of children, screening of lipid disorder in adults. So the answer is option A. Except giving medication to a patient in the ward to halve the progress of disease and prevention of complication, all other options are primary prevention intervention. Okay, 133 question. Level of prevention in pathogenesis phase of natural history of disease are primary and secondary prevention, secondary and tertiary prevention, pre-primary and primary prevention, and primary tertiary prevention. The answer is secondary and tertiary prevention. Pathogenesis phase क्या होता है? We find out the real cause of disease. Okay. So इसमें हम वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की स्टडी करते हैं, दैट हाउ डज इट दैट थिंग अफेक्ट आर बॉडी एंड फॉर्मिंग आर डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. दैट वाज पैथोजेनेसिस मीन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ? बिकॉज इन पैथोजेनेसिस फेज द डिजीज प्रोसेस हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, सो इंटरवेंशन एट दिस लेवल इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी प्रिवेंशन इफ पैथोजेनेसिस इज इन एडवांस, लेट एंड टर्मिनल स्टेज. 134. Tertiary prevention is needed in which stage on the natural history of disease? That was the terminal stage. 135 question. Isolating and treating a child with measles means that is including secondary intervention. अब देखो, मैंने पहले एक आइसोलेशन वाला बात बोली थी. वो आइसोलेशन हम किसी पर्टिकुलर, देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं. कितनी आती हैं? दो चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आइसोलेशन, ठीक है. दूसरा आता है आपका, आप पर्टिकुलर एक तरीके से आइसोलेट हो जाते हैं, और दूसरा आता है कि आप औरों की वजह से, मतलब कम्युनिटी में वो चीज़ ना फैले, रिस्क फैक्टर ना फैले और जगह पर, उससे भी आप आइसोलेट हो जाते हैं. ठीक है, आप खुद को एक जगह पर कर लेते हैं टू प्रिवेंट दोज कम्युनिकेबल डिजीज टू अदर वन. सो वो एग्जांपल आएगा आपका प्राइमरी वाले में. इसमें क्या बोल रहा है? आइसोलेशन तो कर रहा है, बट किसके लिए? खुद के लिए ट्रीट कर रहा है चाइल्ड विद मीजल्स मीन्स. पहले वाले के लिए आप आइसोलेट तो हो रहे हो, बट नॉट फॉर यू, बट फॉर द अदर पर्सन, कि उनको उसका रिस्क फैक्टर ना आए, इसलिए वो प्राइमरी वाला आ जाता है. इसमें आप आइसोलेट तो हो रहे हो, बट किसके लिए हो रहे हो? अपने लिए हो रहे हो, टू प्रिवेंट सच ए पर्टिकुलर डिजीज मीन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम. इसका को देख लो. इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आइसोलेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन. वो देखो इसका मैंने पॉइंट पढ़ा था, तो मैंने उस चीज़ का पहले बता दिया. इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आइसोलेशन इज प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर अदर हु आर नॉट इन्फेक्टेड बट आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर इन्फेक्शन डिजीज. मीन आप आइसोलेट हो रहे हो फॉर योर सेल्फ टू ट्रीटिंग विद ए स्पेसिफिक डिजीज, बट इफ यू आइसोलेट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड बाय इंपॉर्टेंट रीजन वॉज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, दैट वाज कम्युनिकेबल. सो वो आता है हमारा प्राइमरी में. और अगर आप ट्रीट कर रहे हो पर्टिकुलर डिजीज, दैट इंक्लूडिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन. क्वेश्चन नंबर 136. आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विद मम्स बिलोंग्स टू द व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? दैट इज प्राइमरी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, दैट वाज टर्शियरी प्रिवेंशन. ओके, अब 137 का एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ऑल मेजर्स विच आर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट and disability is called tertiary prevention. Parkinson's disease, multiple sclerosis and cancer are conditions that need tertiary prevention. The goal is to prevent further deterioration of physical and mental function and to have a patient use whatever residual function is available for maximum enjoyment of and participation in life's activity. Rehabilitation is an essential part of tertiary prevention. Okay, next question was, this site provides secondary and tertiary health care are होम केयर ऑर्गेनाइजेशन. होम केयर डजंट रिकॉग्नाइज द डायग्नोशन एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी दिखा सकती है, बट डायग्नोज वो नहीं करती है. एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी नो. हॉस्पिटल आपको दोनों चीज़ कराते हैं. हॉस्पिटल्स ऑल्सो इज इन रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिजीज. ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 139. हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव टर्शियरी लेवल ऑफ केयर ऑफ कैंसर? दोज अंडर ट्रीटमेंट, दोज अंडर सपोर्टिव केयर, दोज अंडर अर्ली डिटेक्शन और दोज शेड्यूल फॉर सर्जरी. ठीक है, तो आंसर इज टर्शियरी वाले में अर्ली डिटेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन तो सी ऑप्शन तो गया. अब क्या बचा इसका आंसर? डोज शेड्यूल फॉर सर्जरी, क्योंकि ऑप्शन डी वुड बी राइट. अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों. ऑल मेजर टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, मिनिमाइजिंग सफरिंग लाइक सर्जरी इनटू अ कैंसर टू डिक्रीज पेन एंड रिहैबिलिटेशन इन्वॉल्व द टर्शियरी प्रिवेंशन. देखो, सर्जरी भी एक टाइप का रिहैबिलिटेशन है, क्योंकि वाई वी डू सर्जरी? हम किसी चीज़ को चेंज करके दोबारा उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो है. एक डिजीज हुई, एक इन्फेक्शन हुआ, स्किन की कंडीशन बिगड़ी अपने नॉर्मल साइज स्ट्रक्चर से, देन वी डू अ सर्जरी टू अटेन दोज कंडीशन वॉट एवर द पॉसिबल आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी वी डू. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि हम सर्जरी क्यों करते हैं? दोबारा से उसको उसकी कंडीशन में लाने के लिए, जितना हो सके उसकी प्रोबेबिलिटी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना हम करेंगे. सो रिहैबिलिटेशन भी ऑल्सो टाइप. सो इसलिए ऑल मेजर टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, मिनिमाइजिंग सफरिंग लाइक सर्जरी इनटू अ कैंसर और डिक्रीज पेन एंड रिहैबिलिटेशन इन्वॉल्व इनटू अ टर्शियरी प्रिवेंशन. रिहैबिलिटेशन ऑल्सो इंक्लूडिंग द टर्शियरी प्रिवेंशन एंड ऑल्सो इंक्लूड सर्जरी. दैट्स व्हाई मैंने उसमें दो चीज़ों में ऑप्शन लिखा था, रिहैबिलिटेशन वाला भी और
सर्जरी वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड टर्शियरी लेवल। नो डाउट, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन ऑफ नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेजर 142 क्वेश्चन कर रहे हैं, विच ऑफ द मेजर गिव बिलो इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, दैट वाज डॉट्स ट्रीटमेंट। BCG वैक्सीनेशन इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन, गिविंग डॉट्स ट्रीटमेंट इज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड मैनेजिंग XDR ट्यूबरकुलोसिस एंड MDR ट्यूबरकुलोसिस इज अ टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर डॉट्स, दैट देखो डॉट्स क्या है ना, आप डॉट्स को देते हो अर्ली प्रिवेंशन में, अर्ली डायग्नोसिस में। आपने डायग्नोस कर लिया है अर्ली, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसके 2 टाइप्स के ड्रग्स चलते हैं, द फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड द सेकंड लाइन ड्रग्स। ओके, BCG vaccination is a primary prevention, giving DOTS treatment is a secondary prevention, and managing XDR tuberculosis and MDR tuberculosis is a tertiary prevention. Restoration of ability of following disease, illness or injury is termed as rehabilitation. Rehabilitation means the process of treatment and education that help disabled individual to restore maximum ability to function, a sense of well-being, satisfying level of independence. In a rehabilitation program, the main focus of the healthcare team is on the patient functional abilities. Option B would be right. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस क्या रहता है, हेल्थ केयर की फंक्शनल एबिलिटीज़ को चेक और उसे दोबारा से रिकवर करने में। इनिशियली रिहैबिलिटेशन फोकस ऑन द प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी। एज द कंडीशन ऑफ पेशेंट स्टेबलाइज, रिहैबिलिटेशन हेल्प टू मैक्सिमाइज द क्लाइंट्स फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस। Next question is occur from disability limitation, impairment and handicap, and the question was the example that most closely defines the disability is inability to walk. That was an disability proper example. Taking example of accident, certain words can be defined as in an accident, a disorder, a disease, a person lost his foot, impairment, now he can't walk, disability, so he becomes unemployed, handicap. Because of impairment, the inability of affected person to carry out certain normal activities like inability to walk called disability. Okay, so inability to walk can cause disability is the best common example of disability. The correct sequence of events leading to disability and handicap is impairment, disease, disability, handicap, disease, disability, impair, handicap, disease, impairment, disability, handicap, disability, disease, handicap, impairment. So the answer is option C. Averting the transition of disability into handicap related to which level of prevention? Tertiary. Restriction or lack of ability to perform an activity within normal range by human being is referred to as disability. Okay. Next question is social stigma is felt or assumed in case of disability by community brings is all of the above, like isolation, serious problems, bitterness. तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं डिसेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150, द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेंट कम्युनिकेटर इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। सो इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं, डेली, क्वेली एंड हेली। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज अ मेजर टू ओवरऑल डिजीज बर्डन एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ ईयर टू द लॉस ड्यू टू इल हेल्थ डिसेबिलिटी ऑफ अर्ली डेथ। ओके, So this was the video guys, and if you like this video then please hit the like button and also click the subscribe button to get my latest videos time to time. और next videos हम start करेंगे health promotion से। Thank you for watching this video. Bye.